Hello everyone. In previous classes of English grammar, I have started male female chapter in which I have completed exercise B. Right? Today I'm starting with exercise C. Before that, I need to explain you the common gender. What do you mean by common gender? Common gender are those genders which we cannot be sure about they are male or female. For example, if I'll say men, it is masculine gender, and female, it is feminine gender, right? But if I'll say doctor, even men can be the doctor, even women can be the doctor. So we cannot judge at that particular point of time that who is that person is, right? So that doctor comes under common gender, right? I'll give you one more example. If I'll say astronaut, right? If I'll say astronaut, we cannot make sure that it is a male astronaut or female astronaut, because many astronauts are male, and if Kalpana Chawla, yes, she's a female astronaut. So we cannot justify the gender in which we are making them understood. For example, if I'll say sir, it is male, masculine gender. If I'll say madam, it's a feminine gender. But if I'll say teacher, I'm not sure about which teacher I'm asking. I'm asking about Sandeep sir or Rathod sir or Kumar sir, or I'm asking about any teacher, like for example Rashmi ma'am, Beena ma'am, Vaishali ma'am, Kusum ma'am, Anjali ma'am. No, I'm not sure about which teacher I'm talking about right now. So teacher is a common gender, but if I'll say sir, it's masculine, and if I'll say madam, it's feminine. So masculine and feminine gender, I think it is confirmed with you. When we talk about male, it's masculine. When we talk about female, it's feminine. But when we are not sure about the gender, in which category they are coming, that all comes under common gender. I'll start reading with this. A noun that can refer to both male and female said to be the common gender. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, टीचर, लॉयर, एस्ट्रोनॉट, पायलट. नाउ फीमेल आर ऑल्सो पायलट, तो हम उस टाइम पे उनको नहीं कर सकते. इवन स्टूडेंट्स, अगर मैं कहूँ स्टूडेंट, तो बॉय को भी स्टूडेंट बोलते हैं, गर्ल को भी स्टूडेंट बोलते हैं. तो देर इज नो difference between masculine and feminine. So students are also common gender. If I say child, अगर मैं child बोलूँ तो child भी common gender हुआ, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैं गर्ल चाइल्ड के बारे में बात कर रही हूँ और बॉय चाइल्ड के बारे में बात कर रही हूँ, राइट? सो दिस ऑल कम्स अंडर कैटेगरी ऑफ कॉमन जेंडर. तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा. द डॉक्टर हैज अराइव्ड. नाउ हियर द डॉक्टर, आई डोंट नो लेडी डॉक्टर आई है या जेंट्स डॉक्टर आया है, आई डोंट नो. सो हियर डॉक्टर इज कॉमन जेंडर, राइट? In this statement, the doctor could be either male, man or woman. जैसे मैंने बताया कि either ये man हो सकता है या फिर woman हो सकती है. Yes. Underline the nouns of common gender in the following sentence. Right? We'll write CW in today's date. Our English teacher is very popular among students. इंग्लिश टीचर. वाई इंग्लिश टीचर? बिकॉज मुझे नहीं पता है कि मेरे सर, मेरे जो इंग्लिश टीचर है वो सर है या मैडम. सो अवर इंग्लिश टीचर इज वेरी पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स मतलब बॉयज भी हो गए
और गर्ल्स भी हो गए. द पेरेंट ऑफ sick child was called to school. पेरेंट बोला, हमें नहीं बोला कि फादर को बुलाया या मदर को बुलाया. कोई भी पेरेंट आ सकता है. सो पेरेंट ऑफ अ सिक चाइल्ड. हमें ये भी नहीं बोला गया कि किसी लड़के की मम्मी को बुलाया या लड़के के फादर को बुलाया या लड़की की मम्मी को बुलाया या लड़के के फादर को बुलाया. ठीक है. Ravi's cousin is a trainee in company. cousin हमें नहीं पता है कि cousin लड़का है या लड़की. हमें नहीं बोला कि उसकी सिस्टर cousin या फिर उसका ब्रदर, cousin ब्रदर या cousin सिस्टर, ऐसा नहीं बोला गया. ठीक है. और ट्रेनी मतलब जो ट्रेनिंग लेता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड ट्रेनी. तो ट्रेनी कोई भी हो सकता है. जैसे कोई भी लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं. अगर कोई कंपनी है जो अपने किसी प्रोडक्शन पे जा रही है या फिर किसी सेल्स की या किसी की ट्रेनिंग, तो सेल्स एजेंट्स हो सकते हैं. तो सेल्स एजेंट्स मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं. जब इंश्योरेंस की बात आती है, तो जब हमारे इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं LIC या किसी के भी, तो वो मेल भी हो सकते हैं और फीमेल भी हो सकते हैं. तो उसकी अगर ट्रेनिंग हुई तो वो मेल ट्रेनर्स भी हो सकते हैं, मेल ट्रेनीज भी हो सकते हैं, फीमेल ट्रेनीज भी हो सकते हैं. सो ट्रेनीज ऑल्सो कॉमन जेंडर. द फॉरेनर्स अमंग द टूरिस्ट फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज. फॉरेनर्स मतलब बाहर की कंट्री से आने वाले, एंड टूरिस्ट मतलब कहीं पे टूर पे जाने वाले. मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से कश्मीर घूमने जा रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम यहाँ से घूमने जा रहे हैं कश्मीर, तो हम भी टूरिस्ट हुए. और फॉरेनर्स मतलब बाहर की कंट्री से अगर कोई घूमने आ रहा है तो वो भी टूरिस्ट हुए. राइट. तो जो टूरिस्ट कश्मीर में जमा हुए उसमें इंडियंस भी हैं, फॉरेनर्स भी हैं. तो जो टूरिस्ट है, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मेल ही घूमने जा रहे हैं, फीमेल्स भी तो घूमने जा सकते हैं. जब हम फैमिली पे जाते हैं वेकेशन पे, तो हम मेल फीमेल अलग अलग थोड़ी जाते हैं. हम फैमिली जब जाते हैं, फादर मदर ब्रदर सिस्टर, एवरीवन इज गोइंग टुगेदर. सो वी ऑल आर कमिंग अंडर कॉमन जेंडर. तो टूरिस्ट आर कॉमन जेंडर और फॉरेनर्स मतलब बाहर से आने वाले. तो बाहर से ऐसा थोड़ी है कि सिर्फ मेल फॉरेनर्स आ रहे हैं, फीमेल फॉरेनर्स नहीं आ रही है. नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट. एवरीवन इज कमिंग. राइट. तो इन दिस सेंटेंस फॉरेनर्स एंड टूरिस्ट दोनों का शायद मतलब आपको समझ में आ गया होगा. ये दोनों कॉमन जेंडर में आते हैं. तो इन दिस सेंटेंस द फॉरेनर्स अमंग द टूरिस्ट आर फाउंड इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लोकल लैंग्वेज. लोकल लैंग्वेज समझने में फॉरेनर्स को ज्यादा परेशानी होती है. द फेमस एक्टर हैड मेनी एडमायरर्स. फेमस एक्टर, यहाँ पे एक्टर बोला है, तो अब एक्चुअली ऐसा हो चुका है कि हम एक्टर एक्ट्रेस अलग अलग नहीं बोलते. हम एक्टर कॉमनली ही यूज करते हैं. तो जनरली हम ऐसे नहीं बोलते कि जैसे काजोल को भी हम एक्टर बोलते हैं, अजय देवगन को भी एक्टर. बट अगर हम इसको पर्टिकुलरली समझें तो फेमस एक्टर एक्ट्रेस हम अलग लेंगे. बट एडमायरर्स मतलब फैंस. हमारे जो फेमस एक्टर हैं उनके बहुत सारे फैंस हैं. एक्टर एक ऐसा वर्ड है जिसको आप कॉमन जेंडर में भी ले सकते हो, और अगर आप चाहो तो उसको कॉमन जेंडर से छोड़ भी सकते हो. क्योंकि अगर हम मस्कुलिन फेमिनाइन देखने जाएं तो एक्टर का एक्ट्रेस होता है, लेकिन अब कॉमनली सबको एक्टर ही कहा जाता है. सो इन दिस आई allow you to take this in any gender you want, but if you want to take this as common gender you can take. but admirers मतलब fans. जो एक फेमस एक्टर है उसके एडमायरर्स बहुत सारे हैं. ठीक है.
The minister gave a speech in front of more than 500 people. Minister, हमें यहाँ नहीं बोला गया कौन सा मिनिस्टर. मिनिस्टर कोई भी हो सकता है, वो चाहे स्मृति ईरानी हो, जया बच्चन हो, या फिर अपने राहुल गांधी जी हो, या फिर अमित शाह हो, या फिर विजय रूपाणी जी हो, या फिर आनंदीबेन हो. ठीक है, तो हमें पर्टिकुलरली बोला नहीं गया है कौन से मिनिस्टर. सो दिस मिनिस्टर कम्स अंडर कॉमन जेंडर एंड पीपल. पीपल मीन्स बोथ, मेल फीमेल, कोई भी आए होंगे, तो हमें नहीं पता है. सो दिस इज ऑल्सो कॉमन जेंडर. नाउ it's your homework time. In your homework, you will complete this exercise again in notebook. Why I'm always telling you in notebook again? Because आप sentences खुद लिखोगे और आंसर्स बिना देखे लिखोगे. इससे क्या होगा, आपका एक बार रिविजन हो जाएगा and you will understand many प्रॉब्लम्स. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आपको समझ में आ जाएगा तुरंत. तो आप ये वीडियो वापस से देख सकते हो, तो आपके वो डाउट्स क्लियर हो जाए. राइट. एंड वन मोर होमवर्क इज देयर. यू विल राइट 20 nouns, 20 common gender words in your notebook. You can obviously take a help from this, but if you want, you can write many more others. Right? If I'll say chemist, chemist is common noun. हमें नहीं पता है मेल है कि फीमेल है. If you want, you can write teacher हो गया, doctor हो गया, lawyer, astronaut. If I'll say friend, फ्रेंड बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकती है. एथलीट मतलब रमतवीर, मतलब खेल, जो खेलता है. राइट. सो इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल. If I'll say swimmer, it can be male, it can be female. Right? So I think this is clear to you all, and with this I'll end this class and hope this is understood to you, and you will write this in your notebook. Exercise C, again you have to write in your notebook, but without any help. Like, you will just copy the sentences first and then you will solve it again by yourself, and you will write 20 naming words in your notebook. With this, I'll end this class. Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.